Hey guys, Artham this side और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 605 which is also question number 4 from the lead code 75 interview questions list. Right. So we will be solving more questions from this topic array and strings. Right, array and strings. So let's jump on to the question number 4 without wasting any time. So just a second. So here's the question number 4. In this question, I'll just break it down to you. You're given an array which is a binary array, which means it will only have values 0 or 1. 0 means this array signifies a flower bed, right? This array signifies a flower bed, which means that wherever there is 0 present in this array, let's say the array is 0 1 0 0 1 0, right? Wherever 0 is present in this array, it means that there is an empty place, and you can place a flower in that empty space. And wherever there is 1 in this binary array, which it means that there is already a flower present at that position, so you cannot place any flower at that position, right? So what else are you given in this question? I'll just spit it out. Another thing you're given is an integer n, which signifies the number of new flowers, right? The numbers of new flowers you have. आपके पास n new flowers हैं, and you have to place this n new flowers in this array with some constraints, right? And if you're able to place all the new flowers, you would just return true. Otherwise you would return false. So this is the question, and what are the constraints? We'll just look at them right now. So constraints in this question are just one constraint: you cannot place the flowers in the adjacent pots, which means that what? Suppose the binary array or the flower bed is looks something like this, right? So बेसिकली आप आइटरेट करोगे फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. आपने यहाँ पर देखा कि 1 है, यहाँ पर आप प्लेस ही नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 0 है. नाउ you can think of placing the flower here, right? You can pick one flower from this n flowers, n new flowers, right? And you would try placing it here. बट इसमें कंडीशन जो कांस्टेंट है वो हिट हो जाएगा, विच मीन्स दैट एडजेसेंट एम्प्टी प्लॉट्स में आपके फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो दीज आर प्लॉट्स, राइट? एंड नो टू एडजेसेंट प्लॉट्स कैन हैव फ्लावर्स इन देम, विच मीन्स दैट अगर ये एम्प्टी स्पेस है, राइट, इट इज एम्प्टी, राइट? एंड इसका लेफ्ट जो एडजेसेंट प्लॉट है एंड इसका राइट जो एडजेसेंट प्लॉट है, वो दोनों भी एम्प्टी होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फ्लावर प्लेस कर सकते हैं, राइट? So इस केस में when the pointer is at this plot, you cannot place the flower because इसका previous वाला already है flower वहाँ, so adjacent plot में flower हो जाएंगे अगर यहाँ पर place किया आपने तो. So आप यहाँ पर flower place नहीं करेंगे, right? So you would move the pointer to the next plot and you would check that यहाँ पर empty है, हाँ flower place हो सकता है. फिर second condition क्या है? इसके adjacent क्या क्या होंगे? एक left adjacent होगा इसका, एक right adjacent होगा इसका. अब आपको देखना है दोनों adjacent में flowers पहले से नहीं होने चाहिए, यानी उसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर तो 0 है, राइट, बट यहाँ पर 1 है, विच मीन्स दैट अगर आप यहाँ पर दोबारा फ्लावर प्लेस करते हैं, उसे 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर एडजेसेंट प्लॉट में फ्लावर्स आ जाएंगे. सो अगेन यू कैन नॉट प्लेस अ फ्लावर इन दिस पोजीशन ऑल्सो, राइट? साइमल्टेनियसली व्हेन यू गो ऑन दिस वन, आप यहाँ पर प्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर पहले से फ्लावर. फिर आप यहाँ पर आएंगे पॉइंटर लेकर ये वाले प्लॉट पर, फिर आप देखेंगे ये 0 है, बट इसके लेफ्ट में उसके राइट में दोनों ही एडजेसेंट 1 है. एक भी एडजेसेंट 1 होगा तो भी आप फ्लावर प्लेस नहीं कर सकते. कंडीशन क्या है फ्लावर प्लेस करने की? कि वो खुद तो 0 हो, it should be 0 itself and its adjacent plot should also be 0. This is the condition we have to take care of while placing the flowers, right? While placing n flowers, right? So let's look at this example quickly. So this is the flower bed. आप यहाँ पर आए, आपने देखा यहाँ पर पहले से फ्लावर है, नहीं रखेंगे फ्लावर. आप यहाँ पर आए नेक्स्ट 0 पे पॉइंटर लेकर अपने नेक्स्ट प्लॉट पे, आपने देखा 0 है, फ्लावर रख सकते हैं, बट एडजेसेंट कंडीशन चेक करते हैं. इसका एडजेसेंट क्या था? 1. आपने देखा यहाँ एडजेसेंट 1 है, यहाँ तो 0 है, बट इसके लेफ्ट साइड में 1 है, तो आप यहाँ पर फ्लावर नहीं रख सकते. देन यू वुड कम ऑन द नेक्स्ट प्लॉट विच इज़ 0. फिर आपने 0 चेक करने के बाद उसका एडजेसेंट चेक किया, left adjacent is 0, right adjacent is also 0, which means that you can place a flower here, because if you place a flower here, no two adjacent would become 1, right? No two adjacent plots would have flowers, right? So you would just simply place a flower from n new flowers. आप एक flower यहाँ पर रख देंगे उठा के, right? तो and you would move the pointer to the next plot. आपने देखा यहाँ पर 0 है, a flower can be placed, but adjacent की condition satisfy हो रही है. यहाँ पर देखा आपने adjacent 1 है, and adjacent is also 1, right adjacent is also 1. So can you place the flower here? No, right? So then you would move the pointer to the next plot which is already 1, so you cannot place the flower here also, which means that you have just placed single flower, right?
and how many flowers was available with you? You were given one flower, and you were asked to place it in this flower bed, and you have successfully placed one flower in this flower bed, which means अब आपके पास कितने flowers बचे? Zero, right? Zero flowers बचे, which means that you have satisfied the condition and you have placed n flowers in this flower bed. And yes, it was possible for right, yes, it was possible for placing n flowers in this flower bed, so you would just return true, because आपने n के n flowers इस flower bed में लगा दिए, which means that आपने condition satisfy कर दी है. So अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, n flowers इस flower bed में लगा पा रहे हैं इस condition, इन constants को देखते हुए, तो आपको रिटर्न करना है ट्रू. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको रिटर्न करना है फॉल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल, आप यहाँ पर फ्लावर नहीं रख सकते, यू वुड कम टू दिस जीरो. यहाँ पर फ्लावर रखने की सोच सकते हैं, बट आपने देखा इसका लेफ्ट एडजेसेंट वन है, तो यहाँ पर भी फ्लावर नहीं रख सकते, राइट. देन यू वुड कम टू दिस जीरो. आपने कहा ये जीरो है, यहाँ पर फ्लावर रखने की सोच सकते हैं, फिर आपने लेफ्ट एडजेसेंट और राइट एडजेसेंट चेक करा, दोनों जीरो है, तो यहाँ पर एक फ्लावर रख दिया आपने उठा के, सो दिस वुड बिकम वन, राइट. सो आपने यहाँ पर एक फ्लावर रख दिया, राइट. और आप ये वाले जीरो पर आ गए, नेक्स्ट जीरो पे आपने देखा ये जीरो यहाँ पर सोच सकते हैं रखने की, बट आपने लेफ्ट और राइट एडजेसेंट जब चेक किया, आपको पता चला कि लेफ्ट और राइट दोनों में ही क्या है, वन है, विच मीन दोनों में ही पहले से ही फ्लावर अवेलेबल है, पहले से ही प्लेस करा रखा है, तो आप यहाँ पर भी फ्लावर नहीं रख सकते. देन यू वुड कम टू दिस वन, वन है तो ऑलरेडी प्लेस्ड है वहाँ पर फ्लावर, तो पहले से रख ही नहीं सकते, जीरो के केस में तो रख सकते हैं, राइट. सो you would come out of this array, right? And after iterating this full array, you are only able to place a single flower, which means that you are left with a one flower, which means that आपको n flowers दिए थे and आपने पूरे flowers नहीं लगा पाए इस flower bed वाली array में, which means that you failed, right? So you would return false in this case, right? You would return false in this case. So let's build up the intuition first, right? Let's build up the intuition first. Let's take the array, right? Let's take the array 1 0 0 0 1 0 and this 0, right? So आप initially क्या करेंगे? What I had come up with, आपको मैं अपना लॉजिक बताऊंगा, आपको मैं कोई रटा लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, जो ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज जो मेरे दिमाग में आई वो मैं बता रहा हूँ. सो normally we would think of iterating the array, right? We would think of iterating the array from this end to this end, right? From beginning to the end, right? That's what we would come up with. That's the basic solution anyone can come up with. तो हर आइट्रेशन में हर वैल्यू पे हम चेक करेंगे सबसे पहले प्लेसिंग की कंडीशन क्या है. प्लेसिंग की कंडीशन है दैट वैल्यू शुड बी जीरो, राइट. एंड उसकी एडजेसेंट वैल्यूज भी जीरो होनी चाहिए. एडजेसेंट वैल्यूज शुड भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, राइट. वन नहीं होनी चाहिए ना. दोनों वैल्यूज, मान लीजिए ये जीरो था, मैंने चेक करा यहाँ पर फ्लावर प्लेस कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर कंडीशन चेक करी, हाँ इसकी वैल्यू जीरो है, यहाँ पर फ्लावर प्लेस हो सकता है, और इसके एडजेसेंट की भी वैल्यू जीरो है. मैंने देखा राइट एडजेसेंट एंड लेफ्ट एडजेसेंट बोथ आर जीरो, देन ओनली आई कैन प्लेस द फ्लावर, राइट. सो आई हैड प्लेस द फ्लावर हियर. सो दैट्स द कंडीशन फॉर प्लेसिंग द फ्लावर, राइट. So that's the basic solution anyone can come up with, right? So what I had done is for checking the adjacent, you cannot check the adjacent here, right? You cannot check the adjacent here. If the index is so you would just write a condition in the if loop. अगर आपका इंडेक्स जीरो है तो उसका लेफ्ट एडजेसेंट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, लेफ्ट एडजेसेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. सो यू वुड जस्ट से दैट अगर आपका इंडेक्स जीरो है, राइट, तो आपको उस पर ए ऑफ आई जीरो चेक करना है, यानी वो खाली है, वो पोजीशन जीरो वाली वो पोजीशन खाली है या नहीं वो चेक करना है, और उसका जस्ट राइट एडजेसेंट चेक करना है. राइट एडजेसेंट वुड मीन दैट you have to just check the a of i plus 1 is equals to 0, right? That's what you had to do, right? And you would just keep on iterating it, right? Keep on iterating for these cases, for these middle cases, what would be the logic? You don't have to check the index, right? You don't have to check the index, like for right beginning of the array, right? For index 0 you don't have to check the index. What you have to do, you just have to write this basic logic. Let me just highlight it with green, right? So you have to just write this basic logic for what? For this middle array. For the beginning, this if would work fine, right? For this middle array, this logic would work fine. But for the last array, you see that it has a left index, but it doesn't has a right index. So you would write another if for the last index, which means nth minus 1th index, right? Nth minus 1 index. What you will write? If I is equals to nth minus 1 and the value at that position, is 0, right? So you would just check what? It doesn't have a right adjacent, but it has a left adjacent. You would just check that if it's left adjacent, which would mean that a of I minus 1 is equals to 0, then only you can place the flower here, right?
you can place a flower here, right? You can place a flower here because it doesn't have a right adjacent, so you don't have to check the right adjacent, right? You just have to check the left adjacent because it is the end of the array, so you would just check the left adjacent here, right? And for the beginning of the array, it doesn't have a left adjacent, you would just check the right adjacent and that place, obviously, right? So let's look at the code first, then we would talk about the time complexity. So this was the basic function that you were given with. You had to return a bool value, as I have already told you. You have to return true and false, right? And I have also told you the cases where you have to return true and where you have to return false. Initially, you were given a vector of binary vector, right? Of int flower bed and n new flowers, right? This is the n new flowers which you have to place in that flower bed. What I had done is I had taken just look at this. First, look at this. आई सेड दैट मैंने क्या किया, इस फॉर लूप में मैंने ना तो बिगिनिंग और ना एंड चेक किया. एंड और बिगिनिंग की जो डिफरेंट कंडीशंस थी, हैड जस्ट चेक्ड द बिगिनिंग कंडीशन बिफोर दिस लूप, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एरे थी 1 0 0 1 0, राइट? तो बिगिनिंग ऑफ द एरे और एंड ऑफ द एरे मैंने बाद में चेक किया. ये जो फॉर लूप है, दिस इज द लॉजिक फॉर द मिडिल केसेस, नॉट द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड, एक्सक्लूडिंग द बिगिनिंग एंड एक्सक्लूडिंग द एंड. सो सबसे पहले इस फॉर लूप से पहले, विच मीन्स दैट यहाँ बिगिनिंग यहाँ से शुरू होगी, नहीं, फॉर लूप यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा. तो अब ये वाला कंडीशन रह जाएगी. तो शुरू में मैंने इस 0th इंडेक्स वाली पोजीशन को चेक कर लिया अलग से एक इफ लूप लगा के. देन आई हैड जस्ट आइटरेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द लास्ट एलिमेंट, राइट? एंड एंड में लास्ट एलिमेंट की कंडीशन अभी चेक नहीं हुई है, तो इस लूप के बाद मैंने क्या करा, इस लूप के बाद मैंने लास्ट इंडेक्स की कंडीशन अलग से चेक कर दी, विच मीन, राइट? सो लेट्स क्विकली लुक एट what I had done initially. So that's the logic I came up with, right? That's the logic I came up with, and I thought of this logic, right? This logic in the single loop, right? Writing multiple ifs in the single loop. This logic I came up with later, right? So that's the initial logic I came up with. So what I had done, I had just asked check कर लिया मैंने कि भाई उसका साइज, जो फ्लावर बेड एरे है उसका वेक्टर का साइज बड़ा होना चाहिए 1 से, ऑब्वियसली दैट ओनली यू कैन प्लेस फ्लावर्स, राइट? And flower bed of 1, which means that what I'm talking about is, look at this index, right? Look at this index, which means that if flower bed of 1 is 0 and then flower bed of 0 is also 0, which means this is also a 0, what I'm doing is I am at this index and I am checking the right index. If the right index is 0 and the position I am at is also 0, it means that I can place a flower at this position, right? So what I would do, I would just place the flower here, right? I would just place the flower here. So that's what I'm checking here, right? That's what I'm checking here. I had just placed the flower here and I have decreased the flower after placing it, right? What you will do after placing every flower, wherever you are placing the flower, after placing every flower, you would just decrease the flower count which you were given with, right? Initially you were given with n flowers, right? अब आप एक एक लगाते जाएंगे तो उसे decrease तो करना पड़ेगा ना. So that's what I had done. Then for the middle logic again, for this middle ones, right? Excluding the beginning, and I have taken care of the beginning. Now I will take care of this middle array, right? For that I had just iterated a loop from I equals to 1 to less than flower bed dot size minus 1, right? Which means up to this index, right? I had just what I had done, I had just checked that अगर उसका left adjacent, right? I minus 1, let's say I am at this position or I am at this position, right? I am at this position. Let me just change the color to make you understand more. I am at this index, right? I am at this index and which is 0, right? So what I would do, अब मैं चेक करूँगा वो वैल्यू 0 होनी चाहिए, which means that I had checked it here कि वो flower bed of I 0 होना चाहिए, correct? Then I had check कि उसका left जो adjacent है उसका 0 होना चाहिए, right? Left adjacent check कर लिया, flower bed of I minus 1 0 होना चाहिए. And what I had done कि उसका right index, right? जो adjacent value है वो भी 0 होनी चाहिए. Then only I can, if all these 3 conditions satisfies, then only I can place a flower. So I had just placed the flower at that ith position and I have decreased the flower. Right, after placing the flower, I would decrease the available flowers with me, right? That's why I had done this n minus 1, right? And now I had taken care of this beginning. Now I had taken care of this middle elements. What I would take care of now, I would take care of the end element, right? Which would be, I had just why I had checked this, understand this, अगर उसका flower bed का size greater than 1 होगा ही नहीं, which means that एक ही index है, एक ही size का vector था, एक ही साइज के वेक्टर में मैं दो अलग अलग वैल्यू चेक नहीं कर सकता ना. मैं ये वैल्यू चेक करूंगा और फिर मैं क्या फ्लावर बेड ऑफ, जस्ट अ सेकंड, आई वुड चेक फ्लावर बेड ऑफ साइज -2, व्हिच मींस दैट लेट मी मेक द अरे 1 0 0 1 0 1 0.
विच मीन्स दैट इस इंडेक्स पे हूँ अब मैं, लास्ट इंडेक्स पे मैंने चेक कर या एक तो वो जीरो होना चाहिए लास्ट इंडेक्स. हाउ डू वी एक्सेस लास्ट इंडेक्स? n माइनस वन इंडेक्स, राइट? दिस इज n फ्लावर बेड का साइज और -1 उस इंडेक्स पे वैल्यू होनी चाहिए जीरो. दैट्स व्हाट आई चेक. और उसके लेफ्ट एडजेसेंट एग्जिस्ट करता है ना उसका, तो मैंने चेक करा लेफ्ट एडजेसेंट विच मीन्स n-2th प्लेस पे भी जीरो होनी चाहिए. सो एटलीस्ट भाई टू साइज की तो एरे होनी चाहिए ना दो इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए, राइट? n माइनस जब 1 मैं करूँगा तो 2-1 विच मीन 1th इंडेक्स एक्सेस होगा, और 2-2 n-2 जब मैं करूँगा तो 2-2 विच मीन 0th इंडेक्स एक्सेस होगा. इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ लगाई है. और सेम रीजन के लिए मैंने कंडीशन ये फ्लावर बेड ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 यहाँ लगाई है, राइट? दैट व्हाट आई डन. This is a basic logic, right? So let's quickly understand the time complexity. But in the end, what you will do, while to return the answer, you would just check. अगर आपने सारे n प्लेस कर दिए होंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, राइट? n कुड बी जीरो, आपने सारे प्लेस कर दिए, और n कुड बी लेस देन जीरो, आपने सारे प्लेस कर दिए, राइट? और फिर भी बहुत स्पेस बच गई है जहाँ पर फ्लावर्स आ सकते हैं, तो आपने n डिक्रीज करते रहे. आपके पास फ्लावर नहीं थे बट यू कैप्ट ऑन डिक्रीजिंग एन, राइट? यू कैप्ट ऑन प्लेसिंग द फ्लावर्स. तो इन दो कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, राइट? इन दो कंडीशन में ट्रू हो जाएगा. अदरवाइज इफ n इज ग्रेटर देन जीरो देन यू वुड जस्ट रिटर्न फॉल्स और सिंपली रिटर्न फॉल्स, राइट? सो दिस इज द कोड. लेट्स क्विकली गो थ्रू द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड. सो लेट्स क्विकली लुक एट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड. सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए आपको लूप ढूंढना है. आपने ढूंढा लूप विच इज समवॉट रनिंग n टाइम्स, राइट? n टाइम्स, राइट? अब आप क्या कर रहे हैं, एरे में से दो एलिमेंट्स को छोड़ के, n साइज के एरे में से दो एलिमेंट्स को छोड़ के विच इज फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स पे आइटरेट कर रहे हैं, राइट? n-2 पे. अभी n-2 बहुत बड़ा हो जाएगा तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये देगा, राइट? हर एलिमेंट पे आप एक बार जा ही रहे हैं, राइट? अंदर कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? नहीं, जस्ट एज बेसिक इफ no time complexity, constant. So O of n for this loop, this if takes constant time complexity, this also constant, this if again constant time complexity क्योंकि अंदर भी constant time operation हो रहा है, this if again constant time, right? So overall जो time complexity वो इस loop की वजह से आएगी which would be O of n. And for space you're not using extra space, right? You are just manipulating the given array, right? आप जब भी given चीज़ों को manipulate करते हैं, no extra time space complexity is consumed, which means that it is in constant space complexity, right? This is a space complexity and this is the time complexity, right? And just a second, I have forgot to explain you this, राइट? तो ये इफ क्या चेक कर रहा है, ये सब बेसिक केस, राइट? ये बेसिक केस. अगर एक साइज का फ्लावर बेड एरे है, राइट? एक ही प्लॉट अवेलेबल है और वो ही जीरो है, राइट? वो ही प्लॉट जीरो है. सो यू कैन प्लेस अ फ्लावर हियर, राइट? यू कैन प्लेस अ फ्लावर हियर. सो आई हैवंट रिटर्न्ड एनीथिंग इंडिविजुअली बिकॉज अगर एक ही साइज की एरे होगी तो इनमें से कुछ चलने वाला ही नहीं है ना. ये कंडीशन यहीं फॉल्स हो जाएगी, देन अगेन यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पर चेक हो जाएगा Fn, राइट? So that's what I've done in this if, right? And time complexity is O of n and space complexity is constant, obviously. So this was the question. Flower bed, right? Flower bed, na? Can place flowers, sorry. 605 can place flowers. Let's look at the next question, right? Now let's look at the next question in this list, which is question number 5 for us, right? We have already done 4 questions, right? And I hope that you have also done at least 8 questions, right? One for each side. That's what I expect. So let's look at the question number 5 from this list, which is lead code problem 345, reverse vowels of a string, which means that as the name suggests, right? As the name suggests, the tag is easy. So that's why we are doing 2 questions in one video. You're given a string and you have to reverse the vowels in the string. You have to just reverse the vowels in the strings, and vowels, obviously you know that vowels are A, E, I, O, U, right? Which can appear in both upper cases and lower cases, which means बड़े वाले आपके पास कैपिटल लेटर्स में भी A, E, I, O, U हो सकते हैं. A, E, I, O, U, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया, A, E, I, O, U, एंड स्मॉल तो हो गई ऑब्वियसली, बोथ लोअर एंड अपर है, ठीक है? लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल व्हाट यू हैड डन, आपने वॉवल ढूंढा, राइट? और आपने यहाँ से वॉवल ढूंढा, आपने इन दोनों को रिवर्स कर दिया, राइट? इन दोनों को रिवर्स कर दिया, आगे वॉवल था ही नहीं, तो दैट वुड बिकम व्हाट, होले, राइट? होले. And in this example, look at this vowel E. आपको with respect to position करना है, which means that आप अगर वॉवल एक्सट्रैक्ट करें यहाँ से E, O, E, और इसको रिवर्स करें, which means that इन दोनों को रिवर्स, this would become E, O, E, E. So वॉवल का ओरिएंटेशन
आउटपुट स्ट्रिंग में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, चेक करते हैं, ई ओ ई ई, राइट, करेक्ट। सो ऐसा कुछ हमें करना है, खाली वॉवल्स को रिप्लेस करना है, कॉन्सोनेंट्स को छेड़ना ही नहीं है, विच मीन्स दैट ये वाला फर्स्ट वॉवल वुड बी रिप्लेस्ड विद लास्ट वॉवल, second vowel would be replaced with second last vowel and so on. That's what we had done, right? That's what we had done. So अब इंट्यूशन तो आएगा ही ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं मैंने बता ही दिया है कि भाई यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं मैं 2 पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स दैट आप क्या करेंगे, सिंपल एक पॉइंटर यहाँ रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ रखते हैं, राइट, दैट्स व्हाट यू हैव डन एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। एक पॉइंटर यहाँ रखा आई, एक पॉइंटर यहाँ रखा जाइए, दिस डजंट लुक लाइक आई, सॉरी, एक पॉइंटर आई यहाँ रखा एट द फर्स्ट लेटर एंड एट द लास्ट लेटर आई हैड प्लेस अनदर पॉइंटर जी। अब मैंने चेक किया क्या ith पोजीशन पे वॉवल है, अगर नहीं है तो उसे आगे बढ़ा दो। if a of I let's say, right, let's say this string is a, right, if a of I is a vowel, guys, if a of I is a vowel, just increase, just stop there, if it is not a vowel, just increase the counter. What this would do, I will be stopped at the vowel, right, I will be stopped at the first vowel. अब ये vowel नहीं था, right, so what I will do, I will increase the counter, which means that I would be increased, just a second, to this. Now अब vowel आ गया, ये condition false हो जाएगी, obviously it is a vowel, right, this condition becomes false and nothing happens. So अभी आके यहाँ पर रुक गया है. Same for j, if a of j is a vowel, I'm sorry, a of j is not a vowel, keep on decreasing and do this. Why are we doing this? Why do we want to stop at vowels for both the pointers, right? हमें beginning से भी point पहले vowel पे रुक जाना है, last से भी पहले vowel पे. Why are we doing this? Because we had to swap them, right? We had to swap the first vowel we are getting from left and the first vowel we will get from the from the right, and the first vowel we will get from the left. Obviously this is the first vowel we would get from the left hand side and this would be the first vowel we would get from the right hand side. So आपको हमें करना क्या है, इन दोनों को स्वैप करना है, राइट, इन दोनों को स्वैप करके what we would just increase I and decrease j again, right, we would keep on moving j this side and I this side until and unless j becomes less than I, right, or I becomes greater than j, right, that's what we will do, right, that's what we will do. So एक थोड़ा सा लॉजिक तो डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट. सो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस ए स्ट्रिंग में तब तक पहले तो पॉइंटर्स को फर्स्ट और लास्ट वोवल पे प्लेस कर लेना है, राइट, फर्स्ट और लास्ट वोवल पे प्लेस कर लेना है, और जस्ट सिंपली दिस, राइट. मैंने क्या करा, आई यहाँ पर था, जी यहाँ पर था, कंडीशन रखी, अगर ये वोवल है तो रुके रहो, अगर ये वोवल नहीं है तो इंक्रीज कर दो पॉइंटर, तो आई यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा. एंड सेम फॉर जे, अगर ये वोवल है तो यहाँ रुक जाओ, ऑब्वियसली ये वोवल है. अब मैं चेक करूँगा कि आई के पास भी वोवल है और जे के पास भी वोवल है, बोथ हैव वोवल्स, राइट, दोनों के पास क्या है, वोवल्स. अगर दोनों के पास वॉवल्स होंगे then only I would be able to swap them, right, then only I would be able to swap them. अगर ऐसा है कि भाई I के पास तो कॉन्स्टेंट था L और J के पास वॉवल, तो वो तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई ना, क्योंकि हमें रिवर्स तो वॉवल्स करने हैं, राइट. सो दिस वुड बी अ कंडीशन फॉर रिवर्सिंग. जैसे ही दोनों के पास वॉवल्स आएंगे, what I would do, I would just swap the values, right, I would just swap the values of A of I and A of J, which means that मैं ये वाली वैल्यू of I and ये वाली वैल्यू A of J को स्वैप कर दूंगा, और स्वैप करने के बाद I को एक आगे बढ़ाऊंगा और J को एक पीछे कर दूंगा, बिकॉज पुराने जे और पुराने आई से मुझे क्या लेना देना, जब वो स्वैप हो चुके हैं, आई को आगे बढ़ा दो, जे को पीछे कर दो, राइट. दैट्स व्हाट वी विल डू नाउ आफ्टर स्वैपिंग दिस टू चीज़ें, राइट, और आई वुड कम एट दिस एंड जे वुड कम एट दिस, राइट. नाउ अगेन आई तो वॉवल है तो वहीं रुका रहेगा वो, राइट, वॉवल नहीं है तो मूवमेंट करना है ना, बट जे वॉवल नहीं है तो ये पीछे आ जाएगा, जे माइनस जाएगा, विच मीन्स दैट जे यहाँ आ जाएगा, ये वाला लेटर भी रीड कर लिया हमने. अब मैंने चेक किया कि अब मैंने देखा कि इफ कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी ये वाली, ए ऑफ आई पे भी आपका वॉवल है, ए ऑफ जे पे भी आपका वॉवल है, और जैसे ही दोनों के पास वॉवल होंगे, व्हाट वी हैव टू डू जस्ट स्वैप देम, व्हिच मींस दैट एल ई ओ यहाँ पर आ जाएगा, राइट, टी सी एंड व्हाट दिस वुड डू, ई यहाँ पर आ जाएगा, डी ई, राइट, समव्हाट दिस वुड बिकम लाइक दिस, राइट, दैट्स व्हाट इट वुड बिकम, राइट. एंड फिर क्या होगा, अगेन what I had done, मैंने ये रीड कर लिया, मैंने ये रीड पहला वॉवल, फिर मैंने ये वाला वॉवल और ये वाला वॉवल तक रीड कर लिया. अब आई आ गया यहाँ, जे आ गया यहाँ, अब फिर से आई पे वॉवल नहीं है तो आई इंक्रीज हो जाएगा, एंड जे पर वॉवल नहीं है, जे पे सी कॉन्सोनेंट है विच इज, तो जे डिक्रीज हो जाएगा. अब जे आ गया टी पे, आई आ गया सी पे, विच मीन्स जे हो गया पीछे, आई हो गया आगे, विच मीन्स आई बिकेम ग्रेटर देन जे. तो कंडीशन फॉल्स हो गई. और जैसी ये कंडीशन ये वाली कंडीशन आ जाएगी,
जहाँ पर आई आगे चला जाएगा जे से, राइट, जे तो इनिशियली आगे था ना, अब आई जे से आगे चला गया, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, तो वी वुड से दैट वी हैड इटरेटेड होल स्ट्रिंग एंड वी हैड डन ऑल पॉसिबल स्वैप्स दैट वर अवेलेबल विद अस, राइट, सारे स्वैप, सारे वॉवल्स के स्वैप हमने कर दिए हैं। जैसे ही कंडीशन आ जाएगी, जैसे ही आई क्रॉस कर जाएगा किसी जे को, राइट, दैट्स व्हाट वी वुड डू। नाउ लुक एट द कोड क्विकली। So this is the code for this. This is the code for this. In this question, so you were initially given with you were initially given with a function reverse vowels, right? And you had to return the value string. You were initially passed on a string, right? Obviously you would be given with a string, right? Let's take a string by reference, नहीं, एक reference के लिए string रख लेते हैं जो पता चला। आई हमने प्लेस किया, लेट्स प्लेस द पॉइंटर विद डिफरेंट कलर्स, माय फेवरेट ग्रीन। आई हमने कहाँ प्लेस कर लिया, 0 पे, एंड जे वी हैड प्लेस्ड एट लास्ट पोजीशन, राइट, जे हैज प्लेस्ड विद लास्ट पोजीशन, साइज -1, साइज ऑफ दिस -1 would be this position, right, we had placed j here, right, this is the basic condition. अब मैं now what I had done, I had taken two characters, right, I had taken two characters, vowel I and vowel j. What this would initially take care of is I had taken vowel I and vowel j would tell me कि ith पोजीशन पे और jth पोजीशन पे क्या vowel आ गया है, right, that we were checking, right, ये हम चेक कर रहे थे ना, जैसे ही दोनों के पास vowels आएंगे तभी स्वैप करना है। So character vowel I and character vowel j would tell me whether there is a vowel at position ith position and jth position. If they both have a vowel, we would just swap the vowels, right. What I had done, I had just taken a while loop while I less than 0. Obviously I had taken if at the ith position there is a vowel, if at the ith position there is a vowel, just store the vowel in vowel of I, just store the vowel in vowel of I, which means that this value would get updated and vowel of I would store what, the character which we are at, right, the character which we are at. For this case, let's understand by this case, अभी ith position पे L था, so this condition would become false, right, क्योंकि वहाँ पर vowel नहीं है, अब L था तो इंक्रीज हो जाएगा पॉइंटर, सो आई यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, राइट, आई यहाँ से हटके यहाँ आ गया, तो आई को नीचे पीछे से हटा देते हैं कन्फ्यूजन के लिए, राइट, तो आई यहाँ आ गया। अब नीचे आ जाते हैं, दूसरा इफ है, एल्स इफ नहीं है, अगर ये एल्स इफ होते तो एक इफ जैसे ही वर्क करता बाकी सारे वर्क करना बंद कर देते, तो यहाँ पर जे के लिए ऑब्वियसली यू रिक्वायर अनदर इफ। तो मैंने चेक किया जेथ पोजीशन पे वॉवल है, अगर वॉवल है तो उसे स्टोर कर लो वॉवल ऑफ जे में, अरे हाँ मैंने देखा जे पे तो वॉवल है, अब मैंने स्टोर कर लिया वॉवल जे में, विच मीन्स दैट वॉवल जे में ई आ गया, राइट। अब मैंने चेक किया और क्या होगा, अब मैं चेक करूंगा, अब दोनों के पास वॉवल है, ith पोजीशन पे वॉवल और jth पोजीशन पे वॉवल, कौन चेक कर रहा है, ये दोनों वेरिएबल्स वॉवल आई और वॉवल जे। वॉवल आई में मैंने चेक किया, अगर वॉवल आई नॉट इज इक्वल्स टू डॉलर है एंड वॉवल जे इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल्स टू डॉलर, विच मीन्स दैट ये दोनों ही डॉलर नहीं है और ये दोनों डॉलर नहीं होंगे, देन देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, अगर ये दोनों ही डॉलर नहीं है तो इन दोनों के पास ही वॉवल होगा। अगर ऐसा है इन दोनों के पास ही डॉलर नहीं है, so we would just swap them, right, we would just swap them, and after swapping we would just increase I and decrease j। तो अभी तो ये केस नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, राइट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या होगा, अब दोबारा से लूप के अंदर आएंगे, अब मैंने चेक करा ith पोजीशन, राइट, अब मैंने चेक करा आई इंक्रीज हो गया था ना, अब मैंने चेक करा ith पोजीशन पे हमारा वॉवल है, हाँ वॉवल है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वॉवल ऑफ आई में ई स्टोर हो जाएगा जो ith पोजीशन पे था, दैट इज दिस ई, राइट। अब मैं चेक करूंगा जे के लिए, जे पोजीशन पे वॉवल है, हाँ है, तो उसे स्टोर कर लो किस में, ई में, पर वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो यू कैन ऑल्सो टेक अ चेक, राइट, यू कैन ऑल्सो टेक अ चेक, अगर पहले से उसमें वॉवल स्टोर, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन, बट ये दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन, राइट। सो अभी दोबारा ई स्टोर हुआ है, इसमें तो कोई हार्मफुल वाली बात नहीं है, बस एक चेक लगाना है छोटा सा, राइट। अब मैंने चेक करा इस जे वाले इफ के बाद, मैंने चेक करा क्या दोनों के पास वॉवल्स आ गया है पोजीशन जे पोजीशन पे, मैंने चेक किया वॉवल आई के पास डॉलर नहीं है, हाँ वॉवल आई के पास तो ई है, डॉलर नहीं है, सो दिस वुड बिकम ट्रू, एंड वॉवल जे के पास डॉलर नहीं है, हाँ वॉवल जे के पास भी डॉलर नहीं है, वॉवल जे हैज ई विच इज नॉट डॉलर एग्जैक्टली, so this would also become true. This means that vowel I and vowel j, ith position, jth position both have vowels, right? So we would just swap them, right? I had swapped them and I had increased ith position, decreased jth pointer, right? Increase the ith position, increase the ith pointer, this would come here, and decrease the jth pointer, right, this would come here, right, that's what happened. Again I would check this condition i is less than j, which is true। अब फिर मैं इफ चेक करूंगा ith पोजीशन पे क्या वॉवल है, वो कहेगा हाँ भाई चेक करा ith पोजीशन पे वॉवल है, तो उसे अपडेट कर दो, वॉवल ऑफ आई को अपडेट कर दिया, फिर से ई आ गया उसमें,
फिर जे के लिए चेक होगा क्या जे पोजीशन पे वॉवल है, मैंने चेक करा जे पोजीशन तो डी विच इज नॉट अ वॉवल। फिर अगर नहीं है ऐसा तो दिस वुड बिकम फॉल्स एंड दिस वुड बिकम ट्रू, तो जे माइनस माइनस हो जाएगा विच इज पॉइंटर डिक्रीज होगी यहाँ आ जाएगा वो पे, राइट। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग। फिर से इफ चेक होगा क्या वॉवल ऑफ आई डॉलर है, वॉवल ऑफ जे डॉलर है। वन मोर थिंग, जब आप स्वैप करेंगे यू वुड इनिशियलाइज वॉवल ऑफ आई वॉवल ऑफ जे अगेन विद डॉलर, बिकॉज यू डोंट वांट इट टू हैव डॉलर, यू डोंट वांट इट टू हैव वॉवल, राइट। अगर उसके पास हमेशा से ही वॉवल रहेगा तो ये स्वैप की कंडीशन हमेशा ट्रू हो जाएगी। सो आपको क्या करना है, एक स्वैप के बाद हमेशा वॉवल ऑफ आई एंड वॉवल ऑफ जे को डॉलर बना देना, विच मीन्स दैट दिस फर्स्ट बिकेम डॉलर, राइट, एंड दिस ऑल्सो बिकेम डॉलर, जस्ट अ सेकेंड, दिस ऑल्सो बिकेम डॉलर, राइट। मतलब ये शुरू से फ्रेश के स्टार्ट हो गया। अब मैंने आई चेक करा था तो दिस डॉलर बिकेम ई, राइट, दिस डॉलर बिकेम ई फॉर आई एंड फॉर जे। अब जे पे पोजीशन पे अभी तो नहीं था ना, जे पोजीशन पे वॉवल ऑफ आई में अभी भी डॉलर है, ये दोनों अलग अलग है, विच मीन्स वॉवल ऑफ जे पे अभी भी डॉलर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अभी कोई स्वैप नहीं होगा, राइट, अभी कोई स्वैप नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो फिर से आई लेस देन जे चेक होगा विच इज ट्रू, आई इज ऑब्वियसली लेस देन जे राइट नाउ। सो अब क्या होगा, आई पोजीशन पे वॉवल था तो वो कट के फिर से ई हो जाएगा, नो हार्म इन दैट। फिर जे पोजीशन पे चेक होगा, जे पोजीशन पे वॉवल है, अगर है तो उसे वॉवल ऑफ जे में स्टोर कर दो, विच मीन्स ये डॉलर कट के क्या बन जाएगा ओ, विच मीन्स अब वॉवल ऑफ आई एंड वॉवल ऑफ जे दोनों में ही डॉलर नहीं है, यानी दोनों में ही वॉवल आ चुका है। अगर ऐसा है तो दोनों को स्वैप कर दो, राइट, दोनों पोजीशन स्वैप रहेंगी, पहले ये दोनों पोजीशन स्वैप हुई, अब ये दोनों पोजीशन स्वैप हुई, विच मीन्स दैट ये बन जाएगा ओ एंड दिस वुड बिकम ई, राइट, एंड पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे, आई वुड कम हियर एंड जे वुड कम हियर, एंड वापस से वॉवल ऑफ आई वॉवल ऑफ जे बन जाएंगे डॉलर, वॉवल ऑफ आई बिकेम डॉलर, वॉवल ऑफ जे बिकेम डॉलर, चेक इट अगेन, राइट। इन द नेक्स्ट आइटरेशन ऑब्वियसली आई इज लेस देन जे, अभी भी आई इज लेस देन जे, ठीक है। चेक करा कि आई वॉवल है, नहीं है तो आगे बढ़ा दो, आई आगे बढ़ गया, विच मीन्स आई केम हियर एट सी। अब चेक किया क्या जे वॉवल है, अगर नहीं है तो पीछे कर दो, जे वॉवल है, नहीं था, सी था, पीछे कर दिया जे। अब चेक करा क्या वो डॉलर नहीं है, नहीं, बोथ ऑफ देम आर डॉलर, so this would obviously became false. Again when I would check when I would do another iteration, I would check I less than j, नहीं, अब I less than j नहीं है, I आगे आ चुका है j से, which means I is obviously greater than j, and this condition has become false, which means that we have our answer in which we have reversed the vowels, right, so we would just return that string, right, in which we had reversed the vowel. So that's what all in this logic, right. Let's quickly understand the time complexity and space complexity of this logic, right. So टाइम एंड स्पेस के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले लूप देखना है। लूप में क्या है, आई लेस देन जे चल रहा है, लाइक आई लेस देन जे चल रहा है, कहीं ना कहीं इफ आई से मेरा स्ट्रिंग बहुत ही लार्ज है, इनफाइनाइट लार्ज, तो मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं आई एन लेंथ तक जाएगा या फिर पूरी लेंथ आइटरेट करेगा, विच मीन्स दैट हर एक पोजीशन पे आई और जे जाने वाले हैं, राइट। आई वुड से दैट हर एक पोजीशन पे आई और जे जाने वाले हैं, और आई कैन से दैट इफ माई स्ट्रिंग इज सिग्निफिकेंट और समवॉट स्मॉलर देन द लार्ज स्ट्रिंग, आई वुड से दैट आई कहीं ना कहीं n/2 तक जा रहा है और जे भी कहीं ना कहीं n/2 तक पीछे आ रहा है, राइट। तभी तो वो क्रॉस कर रहे हैं ना एक दूसरे को, दोनों इक्वल स्टेप चल रहे हैं कहीं ना कहीं इन सम पॉसिबल केस, और इन वर्स्ट केस व्हाट आई कैन से दैट just look at this example, Z C F F F F E, राइट। आई Z पे था, J यहाँ पर था, अब J तो स्टॉप हो जाएगा, उसे वॉवल मिल चुका है, और जब तक रुका रहेगा जब तक आई को नहीं मिल जाता, आई वुड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। सो आई कैन सी दैट अगर वर्स्ट केस है एंड आई इज मेकिंग अ कंप्लीट आइट्रेशन फॉर द स्ट्रिंग, तो कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर आएगी, क्योंकि हर कैरेक्टर पे आई एक बार आइट्रेट करे, या जे हो सकता है जे आइट्रेट करे, आई यहीं पर फिक्स हो जाए, जे आइट्रेट करे, सो कहीं ना कहीं हर लेटर पे एक बार इटरेशन हो रहा है, विच मीन्स दैट कहीं ना कहीं वर्स्ट केस में O of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। And for space complexity we are not using, this is constant space, this is constant, and right, no other space, right. We are doing this operation in O of one space, right, O of one space complexity. So time complexity was O of n and space complexity was O of 1, right. So that's all for today, and hope that you would do these two questions, right. So that's all for today, and पढ़ाई करते रहिए, all the very best.